Hello guys, welcome you to my new YouTube channel Kyra Classes. We have studied characteristics of living organisms in the previous video. Now, let's move to another topic, that is diversity in the living world. Earth provides the physical base for living beings. There are millions of varieties of living organisms in the world around us. There are also many organisms that we cannot see with our naked eye around us. They are found in varied habitats like mountains, oceans, forests, lakes, deserts, and even hot water springs. Diversity का मतलब होता है variety और different types. तो इसका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. देयर आर ऑल्सो मेनी ऑर्गेनिजम्स दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई अराउंड अस. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आप अपनी आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उन्हें देखने के लिए. They are found in varied habitats like mountains, oceans, forests, lakes, deserts, and even hot water springs. और habitat कहते हैं the place where that organism live. तो वो माउंटेन्स में भी आपको मिल सकते हैं, ओशियंस में भी आपको मिल सकते हैं, फॉरेस्ट में, लेक्स में, डेजर्ट्स में. तो there are varieties or different types of organisms that can be found in different habitats. Number of species identified and studied is 1.7 to 1.8 million. जितनी भी species अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं और जिनके बारे में पढ़ा गया है वो 1.7 से 1.8 million है. All organisms which live on earth together make up the natural diversity of life in the world. This natural diversity of life on earth is generally called biological diversity or biodiversity. जितने भी living organisms हैं जो कि अर्थ पे एक साथ रह रहे हैं वो natural diversity बनाते हैं. इस natural diversity को जो अर्थ पे है इसको basically biological diversity भी कह सकते हैं, biodiversity भी कह सकते हैं. Now come to taxonomy. The systematic arrangement of organisms that includes characterization, identification, nomenclature, and classification of organisms is called taxonomy. तो basically taxonomy का मतलब होता है एक systematic arrangement. organisms का systematic arrangement होना जिसके ना उनके characters, उनके identification, उनकी naming, उनका classification सब आ जाता है. So it is basically a systematic arrangement with these principles. Systematics is a branch of science that deals with identification, nomenclature, classification and evolutionary history of an organism. Systematics एक ऐसी branch है science की जो कि organisms के identification के साथ, उनकी nomenclature मतलब naming के साथ, classification के classify कैसे कर रहे हो उसके हिसाब से और उनकी क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है ऑर्गेनिज्म की तो वो उसको डील करता है. The systematics includes evolutionary history along with taxonomic characteristics of an organism. The term taxonomy was first introduced by A.P. de Candolle in 1813. सबसे पहले जो taxonomy term है वो इंट्रोड्यूस किया था A.P. de Candolle ने 1813 में. Systematics. Latin systema means systematic arrangement of organisms. Systematics का मतलब होता है organisms का systematic arrangement होना. Neo-systematics is a concept of systematics that considers a species to be the product of evolution. This concept was developed by Julia Huxley in 1940. Neo-systematic systematic का ही concept है जो कि ये बताता है कि जो species है वो evolution के through आई है. Basically कह सकते हैं कि species जो है वो evolution का product है. इस concept को सबसे पहले develop किया था जूलिया हक्सली ने 1940 में. Identification is to determine the exact place or position of an organism in the set plan of classification. Identification का मतलब होता है जब आप क्लासिफाई कर रहे हो ऑर्गेनिज्म को तो एग्जैक्टली उसे कहाँ प्लेस करना है, उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन.
इट इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमिक कीज। तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ द टेक्सोनॉमिक कीज। Classification, it is the placing of an organism or a group of organisms in category according to a particular system and in conformity with a nomenclature system. Classification भी यही है कि आप ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हो या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए ग्रुप बनाते हो। जैसे अच्छा, इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मिलते जुलते तो इन्हें एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स मिलते जुलते तो उन्हें दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो इसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। Characterization, the understanding of characters of organisms like external and internal structure, morphology and anatomy, the structure of the cell, cytology, developmental process, embryology, and ecological information, ecology of organism. Characterization क्या होता है? Characterization होता है आप किसी organism का के कैरेक्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कैरेक्टर को पढ़ रहे हो या समझ रहे हो। लाइक अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो एक एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, या सिंपल सी बात है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जिसे कह सकते हैं, या इंटरनल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब आप बाहर से उसका अपीयरेंस देख रहे हो ऑर्गेनिज्म का, तो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस अगर आप देख रहे हो। और अगर आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जा रहे हो, उसका कि वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स ये सब, तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अगर आप सेल के बारे में स्टडी करते हो उसे कहते हैं साइटोलॉजी। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर इज ऑल्सो नोन एज नेमिंग। सिंपल आप नेमिंग कर रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म का। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स, वर्नाक्यूलर एंड साइंटिफिक नेम्स। तो जो नेम्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है वर्नाक्यूलर जो कि कॉमन नेम्स हैं, और दूसरा है साइंटिफिक नेम्स। लोकल नेम्स, लोकली यूज्ड नेम्स आर कॉल्ड एज लोकल नेम्स। जो आप जनरली यूज करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए, उसे कहते हैं हम लोकल नेम्स। Scientific names, these are the names given to the organisms by biologists based on agreed principle and criteria. These are acceptable all over the world. To accomplish this, certain international codes have been established. तो scientific names ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड में acceptable हैं, उन्हें accept करते हैं सब। तो these are the names given to the organisms by biologists. ये जो names हैं ये biologists suggest करते हैं या उन्हें देते हैं organisms को, और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होते हैं, सब इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। साइंटिफिक नेम्स को बनाने के लिए कुछ इंटरनेशनल कोड्स हैं जो स्टैब्लिश किए गए हैं। दीज कोड्स आर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें प्लांट्स के बारे में या उनकी नेमिंग दी जाती है। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें आप वाइल्ड एनिमल्स इन सब के बारे में आप नेमिंग देते हो। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरल मतलब वायरस। ICBN और ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो इस वाले कोड में आप बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया, या नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया। Okay, now come to binomial nomenclature. Carolus Linnaeus used this nomenclature system for the first time and proposed scientific name of all the plants and animals. जो अगर मैं कह सकती हूँ कि who is the father of binomial nomenclature, तो it's Carolus Linnaeus. इसने इस nomenclature को use किया था first time, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स थे इसने ही दिए थे। ही इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। तो बेसिकली आई कैन से हाँ कि ये फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम भी है, या फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट्स। तो अगर एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में देखा जाए तो हर साइंटिफिक नेम के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। जेनेरिक नेम जिसे जीनस कहते हैं, एंड स्पेसिफिक नेम जिसे स्पीशीज कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम
उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है जेनेरिक नेम जिसे जीनस कहते हैं, दूसरा कंपोनेंट है स्पेसिफिक नेम जिसे स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस नेम है और इंडिका स्पीशीज नेम है, और जो जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जबकि आपका स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। This is all for today's video. Thanks for watching. Please subscribe for more videos. Thank you.